So next today we will continue tomorrow yesterday's topic, that is reversible adiabatic expansion, and we were studying the relation between the various variables like temperature, volume and pressure. So yesterday we derived a relation between the temperature and volume, and what was it? It was Tv raised to power minus 1 is equal to constant. This was the relation we derived yesterday, and today we will carry with the temperature and pressure. For temperature and pressure we were doing for the ideal gas. So what is the ideal gas equation? That is P1 V1 is equal to RT1 and P2 V2 is equal to RT2, and V1 is equal to RT1 over P1 and V2 is equal to RT2 oblique P2, and V1 oblique V2 is equal to V1 oblique V2 is equal to RT1 P1 divided by RT2 P2, and when we will simplify it, we will get T1 P2 divided by T2 P1, and putting this value in this equation, that is our resultant equation. What was it? T1 V1 raised to power gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1. This equation we derived yesterday, you must remember it. So putting this value V1 oblique V2 here. Is that clear? So after putting in this, we will get T2 oblique T1 is equal to T1 P2 divided by T2 P1 raised to power gamma minus 1. So we will, when we will further simplify it, we will get T2 oblique T1 multiplied by T2 oblique T1 raised to power gamma minus 1 is equal to P2 oblique P1 raised to power gamma minus 1. Is that clear? So it's T2 oblique T1 raised to power gamma is equal to P2 over P1 raised to power gamma minus 1, and in next step we will write it as here. We will start again. It was T2 oblique T1 raised to power whole gamma is equal to P2 oblique P1 raised to power whole gamma minus 1. So we will simplify it further. That is T2 oblique T1 raised to power gamma is equal to P1 oblique P2 1 minus gamma. हमने क्या किया? P1 और P2 की साइड जो है चेंज की, इसको फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशन में किया तो हमारे पास ये आया. तो बहुत टेकिंग gammath root on both side. Is that clear? We will get T2 oblique T1 is equal to P1 oblique P2 raised to power 1 minus gamma oblique gamma, and it will give us T1 P1 raised to power 1 minus gamma oblique gamma is equal to T2 P2 raised to power 1 minus gamma oblique gamma, and further TP raised to power 1 minus gamma oblique gamma is equal to constant. So it is our second relation.
first relation was between these temperature and volume, and next relation is between temperature and pressure for the what reversible adiabatic expansion of a आइडियल गैस। तो इसको मैंने आपको बार बार बताया था कि आपको सिर्फ इसमें थर्मोडाइनमिक्स में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सा लॉ इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, द रिलेशन बिटवीन द एंथैल्पी एंड अदर थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी, वो कहाँ पे आपने किस इक्वेशन को यूज़ करना है। एल्स इज़ वेरी इजी, एल्स इज सिंपल मैथ। यहाँ पे देखो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई की, उसके बाद इसको मतलब रीअरेंज ही करते रहे आप, और यहाँ से आपने फिर वही के टेम्परेचर वॉल्यूम के रिलेशन को पुट किया यहाँ पे, और उसके बाद वॉल्यूम पुट किया तो इसको फिर आपने फर्दर रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके आपके पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो इसमें लास्ट है, जो लास्ट रिलेशन है दैट इज रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर द क्या था, फॉर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहाँ पे बहुत इजी है प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। आपको जो प्रीवियस रिलेशन है दोनों वो पता होने चाहिए। तो क्या था प्रीवियस रिलेशन, एक आपके पास ये रिलेशन था और दूसरा यहाँ पे ये था 1-2 वाला ये। ठीक है, तो इनको आपने यूज़ करना है यहाँ पे। तो किस तरह से लिखेंगे आप, P1 ऑब्लिक, इन दोनों इक्वेशंस को जब आपने कंबाइन किया तो आपके पास आया देखो P1 ऑब्लिक P2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा ऑब्लिक गामा इज इक्वल टू V1 ऑब्लिक V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, P1 ऑब्लिक P2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा ऑब्लिक गामा इज इक्वल टू V2 ऑब्लिक V1 1 माइनस गामा। ठीक है, आफ्टर देन इट विल बी P1 ऑब्लिक P2 रेज टू पावर 1 ऑब्लिक गामा इज इक्वल टू V2 ऑब्लिक V1 एंड रेजिंग बोथ साइड टू द पावर ऑफ गामा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस गामा रूट बोथ साइड पे लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1 माइनस गामा रूट लिया और यहाँ पे भी ये लिया। ठीक है, जैसे हम पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ साइड हमने रेज टू पावर गामा कर दिया ताकि ये गामा ऊपर चला जाए। P1 ऑब्लिक P2 और ये गामा यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास V2 ऑब्लिक V1 रेज टू पावर गामा, इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा, और क्या आएगा PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन रिलेशन आ गए। देखो एक ये आ गया, एक ये आया और एक हमने कल किया था। तो आपने इन तीनों रिलेशंस को कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट क्या है तो देखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के फेलियर क्या थे, किस तरह क्यों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फेल हुआ, और उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ जो था उसकी स्टेटमेंट में ऐसा क्या था जो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट में नहीं था। तो फर्स्ट लॉ में आपको पता ही हमने बोला था एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो फर्स्ट लॉ ने जो लिमिटेशन थी तो ये इस तरह से थी कुछ कि इसमें ये नहीं बताया कि मतलब कौन सी डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा और मतलब कितना उसका चेंज होगा, क्या किस तरह से होगा। तो और ये भी नहीं बताया फर्स्ट लॉ में कि कौन सा प्रोसेस जो है पॉसिबल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कौन सा नहीं हो सकता है। उन्हें सिंपली बस एक डेफिनेशन दी थी। तो सेकेंड लॉ में क्या डेफिनेशन आई, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस लाइक द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ हिल आर थर्मोडाइनमिकली इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इसकी पहली डेफिनेशन थी
कि इनका बोलने का मतलब था कि हाई से जो लो की तरफ जा रहा है टेम्परेचर के केस में या हीट के केस में, तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते कि वो अपने आप ही रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो इसने फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ हीट या टेम्परेचर को क्लासीफाई कर दिया कि किस तरफ से जाएगा। तो इन्होंने बोला कि कुछ प्रोसेस जो होते हैं, दीज आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेस विच अकर्स themselves, दे डोंट नीड एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी। जैसे वाटर है, तो वाटर हाई प्लेस, अगर आपने हाई हिल पे रखा होगा तो वो वहाँ से स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा, टू डाउनवर्ड फ्लो करेगा। ठीक है, उसको हम स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। तो इन्होंने बोला कि ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो उसी तरह जैसे आपने कोई हीटेड बॉडी रखी है, तो थोड़ी देर बाद अगर आपने आयरन का पीस रखा है, वो हॉट है और वो कोल्ड हो जाता है थोड़ी देर, तो इट मीन्स कि वो जो है वहाँ से एनर्जी का फ्लो हुआ फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस। जैसे उसने अपनी सराउंडिंग की तरफ को क्या की, हीट लूज कर दी। तो दोज आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो ये है। तो सेकंड डेफिनेशन जो थी इसकी, दैट वाज द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल विदाउट लिविंग सम इफेक्ट्स एल्सवेयर। तो इसने उन्होंने फर्स्ट लॉ में देखो बोला था कि हीट कैन बी क्रिएटेड, कांट बी क्रिएटेड नॉर बी एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर। तो इन्होंने बोला था कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल। इन्होंने बोला भाई हीट को वर्क में आप कन्वर्ट तो कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आपने 10 किलो जूल हीट सप्लाई की तो उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट का आपको वर्क ऑब्टेन होगा। इन्होंने बोला कि 10 किलो जूल हीट सप्लाई की तो उससे कुछ कुछ जो है उसका हीट का अमाउंट जो है वो समवेयर क्या हो जाएगा, मतलब कहीं और यूज़ हो जाएगा, और सिर्फ थोड़ा सा मतलब डिफरेंस रहेगा, बाकी सारा जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक डेफिनेशन इन्होंने और दी, थर्ड, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन फंक्शनिंग इन cycles which can convert heat completely into the equivalent amount of work without producing some changes elsewhere। तो इन्होंने बोला, तो सेकंड डेफिनेशन की तरह ये थर्ड भी, कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो कम्प्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशंस हैं। तो ये, और आपने इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आपको ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या व्हाट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हो और उनमें पूछा हो कि कौन सी स्टेटमेंट जो है सेकेंड लॉ को बिलोंग करती है या नहीं करती है। तो इसकी ये तीन स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपको समझ होनी चाहिए इसकी, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।